Look at this squirrel. She's having her food and she's looking so cute. Oh, she ran away. Hey guys, welcome back to our channel Humpty Dumpty 2. I hope you all are doing good. And we three are saying hello to all of you. So, अभी हम walk पे निकले हैं. We've just come out for a walk. It's 5 PM in the evening. And we have completed 4 months in Toronto, Canada already. So me and Shashank were discussing what are the 5 things we really don't like about Canada. In this video today, we are going to be talking about that. What are the 5 things from our experience which we really did not like. The experience might be different for everyone, but this is our share of experience. Also, since we've come out on a walk, you will get a view of how this area looks like. This is residential area where we stay. We are in a condo in an apartment building, but उसके पास में ऐसे houses, town houses, detached houses ये सब होते हैं. तो आपको वीडियो में पीछे पीछे आपको ये सब देखने को मिलेगा. So you will enjoy the view also. We are sharing our journey, our experiences as new immigrants here, and you will get really interesting and informative content on this channel. So you can subscribe and stay tuned. For now, let's start the video. The first thing that we found really weird here in Canada when we came as new immigrants and हमने अपनी grocery shopping start करी थी was there is no MRP concept on consumer packaged goods here in Canada. अब आप grocery लेने जाओगे and suppose आप एक chips का पैकेट देखते हो from a particular brand and आप देखोगे कि Loblaws में उसका प्राइस कुछ और है, मेट्रो में उसका प्राइस कुछ और है, वॉलमार्ट में कुछ और है उसका प्राइस. सो देयर इज नो एमआरपी, कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है कि एक चिप्स का पैकेट इस ब्रांड का इसी रेट पे मिलेगा लाइक इट इज इन इंडिया. तो ये हमें बहुत वियर्ड लगता था. तो इनिशियली आप क्या करते हो, यू स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑफर्स. वो कहाँ सस्ता मिलेगा, ओके लेट्स बाय इट फ्रॉम देयर. बट व्हाट हैपेंस इज इस स्टोर पे आज सस्ता है तो कल हो सकता है दूसरे स्टोर पे सस्ता हो. देयर इज नथिंग फिक्स्ड. मे बी वन स्टोर इज प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट टुडे, ही माइट नॉट प्रोवाइड अ डिस्काउंट टुमारो. और इसमें ये भी है, इस स्टोर पे हो सकता है ये वाली आइटम सस्ती हो, बट अगर आप किसी दूसरी आइटम के प्राइस को कंपेयर करोगे इस स्टोर से उस स्टोर से, तो यहाँ पे वो महंगी हो सकती है और वहाँ पे सस्ती हो सकती है. तो काइंड ऑफ वो एवरेज आउट हो जाता है. हाँ, तो इतना दिमाग नहीं लगा सकते. तो इनिशियली हम बहुत सोच रहे थे नहीं यहाँ से खरीदेंगे वहाँ से खरीदेंगे, बट देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम. हमने इनिशियली काफ़ी इस पर दिमाग लगाया है, बट अब हम हुक्ड हो गए. अब हम यूज्ड टू हो गए कि नहीं, हमने सेट कर लिए हैं कि हम अब इन्हीं स्टोर से खरीदते हैं. लाइक हम वॉलमार्ट से खरीदते हैं और अपने कुछ यहाँ पे लोकल स्टोर्स हैं वो भी हमें अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे दे देते हैं, तो हम उनसे ही खरीदते हैं. वो इनिशियली था कि हम भागते थे कि ओके अरे ये प्रोडक्ट वहाँ सस्ता मिल रहा है तो हम वहाँ जाएंगे. अगर आप अमेजोन से भी कंपेयर करो तो अमेजोन पे भी सब कुछ सस्ता नहीं है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. हमने रिसेंटली अभी एक डेविड ऑफ की कॉफ़ी परचेज करी थी. फार्म बॉय पे हमने वो परचेज करी $10.99 की. सेम कॉफ़ी सेम वेट की अमेजोन इज सेलिंग $23, डबल प्राइस के ऑलमोस्ट. तो आप वहाँ से भी ब्लाइंडली नहीं खरीद सकते. And another thing is when you order something online from a store, the prices will be higher compared to when you do in-store shopping. But Instacart.com पे Walmart के prices store और online पे same है. So if you want to buy something from Instacart, I would say आप go for Walmart. हम सारी shopping अपनी Walmart से ही करते हैं from Instacart.com. But क्योंकि Costco, Metro, Loblaws के prices थोड़े marked up होते हैं Instacart.com पे, they mentioned it also. ऐसा कुछ hidden नहीं है, वो clearly mention भी करते हैं इस बात को. Second point from our experience is medical services. वैसे तो I had a recent maternity experience here and I'm so happy with the treatment that I got from the doctors and nurses. It was superb, it was A class. इसी कहानियाँ अभी तक मैं अपने घर वालों को बताती हूँ और मैं और शशांक जब इसके बारे में बात करते हैं we really feel like क्या ट्रीटमेंट मिला था. इट वॉज रियली वंडरफुल. बट कुछ मेडिकल सर्विसेज हैं जो यहाँ पे एक्चुअली अच्छी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल शशांक को भी रिसेंटली टेटनस का इंजेक्शन लगाना था एंड उसकी अपनी ही कहानी है. हाँ, वो टेटनस का वैक्सीन लगवाना यहाँ पे बहुत ही चैलेंज है. मतलब ये तो एक सिनेरियो, मे बी ऐसे और सिनेरियोज होंगे. दैट्स माय एक्सपीरियंस रिगार्डिंग अ टेटनस वैक्सीन. मैं नियर बाय शॉपर सेंटर पे गया, सो दे आस्क्ड मी फॉर अ रिक्विजिशन. अब सिंस इट वाज अ वीकेंड, सो गेटिंग अ रिक्विजिशन फ्रॉम माय फैमिली फिजिशियन वाज नॉट पॉसिबल. सो आई अप्रोच माय फैमिली डॉक्टर ऑन अ वीकडे. उन्होंने एक रिक्विजिशन भेजा शॉपर्स ड्रग मार्ट के बाद. देन वो मुझे बताते हैं कि वी आर कन्फ्यूज कि आपको कौन सा टेटनस वैक्सीन लगवाना है, आप हमें ड्रग आइडेंटिफिकेशन नंबर बताएं. अब मैं ड्रग आइडेंटिफिकेशन नंबर कहाँ से लेकर आऊँ टेटनस वैक्सीन का. सो मैं रेक्सवेल ड्रग मार्ट गया. वहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारे पास स्टॉक में नहीं है, हम ऑर्डर कर सकते हैं, वी कैन प्लेस एन ऑर्डर एंड इट विल कॉस्ट यू $20. मतलब $20 फॉर अ टेटनस वैक्सीन. दे टोल्ड मी अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे चाहिए तो आप इमरजेंसी चले जाओ. एंड वहाँ पे जाने का आराम से 6-7 आवर्स की वेटिंग है. सो मतलब एक टेटनस वैक्सीन को लगवाने के लिए मुझे यहाँ से इमरजेंसी जाना पड़ेगा और वहाँ पे 7 to 8 आवर्स की वेट करना पड़ेगा. तो इमरजेंसी सर्विसेज का यहाँ के केस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग है और
मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे काम होता है, इवन इन द केस ऑफ चाइल्ड, बिकॉज मेनी टाइम्स क्या होता है कि इफ यू गेट अप इन द मिडल ऑफ नाइट एंड यू फील योर kid has high fever and you're confused what to do and you just plan to go to the emergency service, sick kids, so वहाँ पे they conduct tests on your child and they will decide the your priority on the basis of the test results. So you might have to wait like 6-7 hours in the emergency. इतने टाइम में क्या होता है, आपका बेबी इतना क्राइंग क्यों जाता है कि आप हो सकता है कि वापस ही आने का सोच लो. सो इमरजेंसी सर्विसेज का यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत है क्योंकि बिकॉज डॉक्टर्स की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है. इन दी एंड हमने तो शशांक को वैक्सीन ही नहीं लगाई, सो ही इज लिविंग विदाउट द टेटनस इंजेक्शन. आई होप एवरीथिंग इज फाइन इन हिज बॉडी. आई हैव लेफ्ट इट ऑन गॉड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी वांट टू टॉक अबाउट इज वॉकुलेटर्स. ये हमने एक्सपीरियंस किया है स्पेशली आफ्टर द बेबी. जब हमने घूमना फिरना स्टार्ट किया, वी started roaming around with the baby installer. The problem is जब हम दोनों travel करते थे, it was so easy कि escalator पे चढ़ जाओ, you could walk the stairs as well and you could reach the place. But अब क्या होता है, हमें हर जगह lift ढूंढनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे walkulators ही नहीं है, escalator पे तो stroller चलेगा नहीं और lift ढूंढना is such a task. इवन इन ईटन शॉपिंग सेंटर, वहाँ पे कोई वॉकुलेटर है ही नहीं. द शॉपिंग सेंटर इज़ ह्यूज. एवरी टाइम अगर आपको दूसरे फ्लोर पे जाना है तो यू हैव टू टेक द लिफ्ट ऑप्शन. और लिफ्ट में बिकॉज ऑफ कोविड आजकल काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी है और द नंबर ऑफ पीपल, दो एक साथ आपके प्रैम्स नहीं जा सकते हैं लिफ्ट के अंदर, तो आपको वेटिंग क्यू बहुत लंबा होता है. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और यहाँ पे इतना ज़्यादा यूसेज है प्रैम का, उसके बाद भी लिटिल डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि शॉपिंग सेंटर्स में वॉकुलेटर्स नहीं है. टीटीसी में अगर आपको जाना है, अगर आपका स्टेशन बेसमेंट में है या फर्स्ट फ्लोर पे, बहुत मुश्किल हो जाता है. सीरियसली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. इनफैक्ट अभी हम कहीं जा रहे थे तो वी हैड टू टेक द टीटीसी. हमने टीटीसी में एंट्री करी एक गेट से और वहाँ पे लिफ्ट ही नहीं थी, सो वी हैड टू गो बैक. लिफ्ट काम नहीं कर रही थी. लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, लिफ्ट बंद थी. तो उसका दूसरे रूट से जाना पड़ा. हाँ, तो हमें दूसरे रूट से एंट्री लेनी पड़ी. तो आई थिंक वॉकुलेटर्स कनाडा को बनाना चाहिए. इफ एनीबडी फ्रॉम कनाडा गवर्नमेंट इज वाचिंग दिस वीडियो, सो गाइस प्लीज वॉकुलेटर्स बना दो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स जो स्ट्रॉलर लेके अपने बच्चे को घूमने निकलते हैं. टीटीसी में तो ज़रूरी हो, और एटलीस्ट प्राइम शॉपिंग सेंटर में, तो खासकर ईटन जैसे शॉपिंग सेंटर में जहाँ पे इतना ज़्यादा फुटफॉल है, वहाँ पे तो ज़रूरी होने चाहिए वॉकुलेटर्स, बिकॉज प्रैम के साथ बहुत डिफिकल्ट है. सीरियसली हमें अब 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है जस्ट बिकॉज वी आर कैरिंग द बेबी. इट इज रियली टाइम कंज्यूमिंग एंड इट्स इरिटेटिंग समटाइम्स. यार लिफ्ट ढूंढने निकलो, फिर लिफ्ट में लगे हुए लाइन है, एक स्ट्रॉलर एट अ टाइम एक लिफ्ट में जाता है. ओ गॉड, इट्स अ टास्क. पर लिफ्ट मिलती भी नहीं है. कहाँ पे है? अब हम साइन बोर्ड्स पढ़ते हैं और वहीं जाते हैं जहाँ पे प्रैम कैन गो, बेबी का बना होता है. अब बात करते हैं 4th पॉइंट जो हमारे हिसाब से अगेन इज अ नाना, which is daycare services for your child in Toronto, Canada. Guys, Toronto में डे केयर कॉस्ट सबसे ज़्यादा है. आई मीन इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ डे केयर कॉस्ट. अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करें, इट्स अराउंड $1,700 पर मंथ. मतलब आपके रेंट की इक्विवेलेंट ही कॉस्ट आ जाती है. अगर आपका ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको रिबेट भी मिलता है गवर्नमेंट से अगर आपकी सैलरी कम है, बट स्टिल $1,700 इज़ द एवरेज कॉस्ट हेयर फॉर अ डे केयर. इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू योर रेंट. कितना मुश्किल है अफोर्ड करना. अभी तो हमारा चाइल्ड खाली 2 months ओल्ड है, सो इट्स वी हैवंट थॉट अबाउट डे केयर, बट ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड व्हेन ही टर्न्स 1 year वी विल हैव टू थिंक अबाउट डे केयर. और डे केयर का वेटिंग ही बहुत ज़्यादा है. There is a 6 months waiting of daycare here. Yeah. So I don't know कि हम अभी सिंगल सैलरी पे हम कैसे अफोर्ड करेंगे daycare का रेंट के साथ. I mean we cannot even think about it. But like हमारे एक फ्रेंड्स हैं, they are paying around $2,000 per month for daycare. It's extremely expensive. I have heard कि Toronto government, Justin Trudeau government, they are planning to come up with a plan. Daycare will be $10 per day. Yeah, I don't know when. Obviously, it is going to be a game changer, but कितने टाइम में वो इम्प्लीमेंट होगा, बिकॉज दे नीड टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट. डे केयर के अलावा और भी आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है. अगर सारा पैसा डे केयर में ही लगा दोगे तो सेव क्या करोगे पर मंथ? ये सिटी टू सिटी वेरी भी करता है. ब्रैम्पटन में प्राइस डिफरेंट है, बट हाँ टोरंटो का सबसे ज़्यादा है. बट वहाँ पे भी जो और जगह भी वहाँ पे भी कुछ कम नहीं है. $1,000 से कम तो मुझे लगता नहीं कहीं है. अभी ज़्यादा ही होता है. I think median is $1,700. मीडियन टोरंटो का जो मीडियन प्राइस है वो अराउंड $1,685 है. ऑब्वियसली अब फुल टाइम के प्राइसेस डिफरेंट होती है. ये फुल टाइम का बता रहा हूँ मैं. पार्ट टाइम केस के प्राइसेस थोड़ा डिफरेंट होता है. आई थिंक फुल टाइम केस में फ्रॉम 0 to 18 months इट्स $96.85 पर डे. Now let's talk about the last point, which I'm sure most of you will agree with us. I think all the new immigrants should agree with us, is real estate prices here in Toronto, Canada. हाँ गाइज, ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. ये तो आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में कि यहाँ पे रियल एस्टेट प्राइसेस में आग लगी हुई है लिटरली. और सिंपल सा डिमांड सप्लाई का फंडा है. बिकॉज हर साल इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इतना ज़्यादा डिमांड है, बट कनाडा में उतने हाउसेज नहीं है. अगर
अभी रिसेंट आप न्यूज़ पढ़ें तो कनाडा को कम से कम 1 मिलियन नए हाउसेस चाहिए अगर इस डिमांड को मीट करना है। डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई इतनी कम है, तो सिंपल ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा, मतलब हाउसेज लिटरली ओवर प्राइस, इतना ज़्यादा प्राइस एक्सेलरेशन है, इतना ज़्यादा ओवर प्राइसिंग है कि एक सिंपल सा आई मीन 2 BHK अपार्टमेंट यू आर गेटिंग इट फॉर 1 मिलियन। ऑलरेडी एवरेज प्राइस टोरंटो का तो टच कर गया है 1 मिलियन, और अगर आप डिटैच हाउस पे जाओगे तो इट इज़ लाइक 1.5-1.6 मिलियन। आई मीन आई डोंट नो कि हम कैसे घर यहाँ पे ले पाएंगे, क्योंकि सैलरीज इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियन सैलरी नहीं बढ़ती है, लेकिन घर के प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हर साल 20-30% बढ़ जाते हैं। It's almost impossible to afford a house here. And cost of living is altogether expensive. So how will you save money for $1 million house here in Canada? It's impossible. Though I have heard कि हाँ mortgage prices बहुत कम है, but ठीक है, लेकिन you need to have a 20% deposit as well. I mean obviously 5% से भी आप खरीद सकते हो, but on the safer side you need a 20% deposit to purchase a house here. अब आप लगा लो अगर आप 1 million का हाउस खरीदोगे, you need to have $2 lakh. अगर आप इलेक्शन का भी देखो तो सारे पार्टीज का, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, NDPs, एक ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन था पूरे इलेक्शन में, हाउ टू मेक दी हाउसिंग अफोर्डेबल। लिबरल्स हैव कम बैक, लेट्स सी कि अब उनका प्लान यहाँ पे वो बेसिकली इंप्लीमेंट करेंगे भी क्या नहीं करेंगे, और उसका एक्चुअल में ग्राउंड वर्क रियलिटी में कब हमें इम्पैक्ट दिखाई देगा, और हमें कुछ फ़ायदा होगा भी या नहीं। We'll see. So guys, from our experience in last 4 months, ये थे 5 points which we feel are quite weird and we dislike about Toronto, Canada. अगर आपको कनाडा के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में as new immigrants here in Canada जानना है, then you have to click the subscribe button, guys. Click the subscribe button and we promise you are going to love the content here. We are really working hard to provide you most informative content and जितना provide कर सकते हैं कर रहे हैं. Let us know अगर आपको किसी particular topic पे वीडियो चाहिए, we'll try to make a video on that too. And abhi ke liye we'll just say bye bye. We'll see you in our next video. Till then, take good care of yourselves. Bye bye.